Morning students. Today I am going to teach you lesson number 2. How does it grow? How does it grow? How does it grow means जो फसल है वो उगती कैसे है. How does it grow? Okay, let's understand. Rice, maize and wheat are the most important part of our food. We call them cereals. They are the seeds of different plants. These plants belong to the grass family. We use cereals to feed our farm animals also. Rice, maize, wheat are the most important part of our food. We call them cereals. Children, cereals means grains. Okay. Rice, maize, wheat ये सब क्या है? Grains है. Grains के name है ना? They all belong to the grass family. ये सभी grass family से belong करते हैं. We use cereals to feed our farm animals also. जो animals हम पालते हैं उन्हें भी खिलाने के लिए हम cereals का यूज़ करते हैं. ओके, अब जानते हैं कि ये उगते कैसे हैं. How we grow these plants. Look here. How does rice grow? राइस कैसे ग्रो होता है? राइस को हम कैसे उगाते हैं? हाउ डज राइस ग्रो? राइस इज प्लांटेड इन बिग फील्ड्स. राइस इज प्लांटेड इन बिग फील्ड्स. वी कॉल दिस फील्ड्स पैडीज और राइस पैडीज. They are flooded with water. When the plants are young, they look bright green. But when they are ready to harvest, they turn golden brown. The tips of the plant have rice kernels. It is these kernels that we eat. People in South India eat rice for every meal. Look here children, rice is planted in big fields. Rice को बहुत ही बड़े बड़े खेतों में लगाया जाता है. We call these fields paddies or rice paddies. Paddies means fields in which rice is grown. Paddies means fields in which rice is grown. जहाँ पर चावल की खेती की जाती है उस जगह को कहा जाता है paddies. Okay. They are flooded with water. Flooded, filled with water. आपने देखा होगा जब राइस को उगाते हैं, जैसे ही वो थोड़े से बड़े होते हैं उसके बाद उसमें पानी रखा जाता है, उस खेत में पानी से भर के रखा जाता है. When the plants are young, जब प्लांट्स यंग होते हैं तो वो ग्रीन दिखाई देते हैं, है ना, ग्रीन कलर के होते हैं. When they are ready to harvest, they turn golden brown. लेकिन जैसे ही वे बड़े हो जाते हैं और हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं. हार्वेस्ट मीन्स टू कट एंड गैदर अ क्रॉप. कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, वो गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं. आपने देखा होगा पेड़ के जो पत्ते होते हैं वे हरे होते हैं पहले, उसके बाद धीरे धीरे पीले हो जाते हैं. जब वो बहुत सूख जाते हैं तो गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं और फिर पेड़ से टूट जाते हैं. वैसे ही राइस का कलर भी चेंज होता है. ओके, पहले वो ग्रीन होते हैं
राइस के जो प्लांट्स हैं वो पहले ग्रीन होते हैं, उसके बाद गोल्डन ब्राउन में चेंज हो जाते हैं। द टिप्स ऑफ द प्लांट्स हैव राइस कर्नल्स। प्लांट्स के टिप में राइस कर्नल्स होते हैं। कर्नल्स, द इनर पार्ट ऑफ अ सीड और नट। Look here children, in this picture you can see kernel, the inner part of a seed or nut. इसे हम जैसे ही ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो इसका जो इनर पार्ट है उसे कहा जाता है कर्नल्स। ओके, इसी को हम खाते हैं। पीपल इन साउथ इंडिया ईट राइस फॉर एवरी मील। जो साउथ इंडिया का जो साउथ एरिया है, वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर अपने भोजन में राइस समाविष्ट करते हैं। ओके, सैम एंड हिज फैमिली लिव इन चेन्नई। दे ईट राइस फॉर ब्रेकफास्ट, दे ईट राइस फॉर लंच, दे ईट राइस फॉर डिनर। वी कैन मेक फ्रॉम राइस मैनी थिंग्स टू ईट। Look here children, Sam and his family live in Chennai. They eat rice for breakfast. ब्रेकफास्ट में राइस खाते हैं। तो राइस से, चावल से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम खाते हैं, लाइक इडली, डोसा, है ना। They eat rice for lunch. लंच में भी राइस खाते हैं एंड डिनर में भी। How does maize grow? How does maize grow? मेज़ को हम कॉर्न भी कहते हैं, है ना। Look here children, this is a picture of मेज़ को ही हम कॉर्न कहते हैं। Maize is an important part of our food. We call it corn also. We grow it in big fields. Farmers grow the plants in rows. Little ditches are made between the rows. Water is pumped into the ditches to reach every plant. As the plants grow, cobs begin to appear on the stalks. One or more than one cob can grow on each stalk. Maize is an important part of our food. मेज़ को हम कॉर्न भी कहते हैं। मेज़ को उगाने के लिए बहुत बड़े खेतों की आवश्यकता होती है। Farmers grow the plants in rows. इसे कतार से लगाया जाता है। जैसे आप क्यू बनाते हैं प्रेयर के लिए, तो वैसे ही रोज में लगाया जाता है। Little ditches are made between the rows. 2 रोज के बीच में डिचेस बनाए जाते हैं। डिचेस मीन्स लॉन्ग चैनल्स dug in fields to take away water. पानी सप्लाई करने के लिए डिचेस बनाए जाते हैं, ओके, ताकि पौधों को पानी मिल सके। As the plants grow, cobs means long hard part of the maize plant on which rows of yellow grains grow. cobs जहाँ पर मेज लगता है उसे कहा जाता है कॉब, ओके। One or more than one cob can grow on each stalk. एक एक पौधे पर एक या एक से ज़्यादा भी कॉब उग सकते हैं, ठीक है। When the cobs are ripe, they have on them lovely rows of yellow grains. We can use these grains for our food. We can grind them into flour to make chapatis.
These chapatis are very tasty. People in Punjab, Haryana and Himachal eat makki ki roti with great relish. They also love to eat roasted corn on the cob. Have you ever tasted it? क्या आपने कभी खाया है? When the cobs are ripe, जब cobs पक जाते हैं, उसमें lovely rows of yellow grains, मतलब उसमें येलो येलो ग्रेन्स के लवली रोज दिखाई पड़ते हैं जो मोतियों के दाने जैसे दिखाई देते हैं. We can use these grains for our food. इसे हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं. कैसे? We can grind them into flour to make chapatis. इसे हम सुखाकर पिसाते हैं, उससे आटा बनता है और आटे से हम चपाती बनाते हैं. और इसे हम ऐसे भी खा सकते हैं, उसे रोस्ट करके, आग में सेक कर, आग में पकाकर. ओके. अधिकतर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के जो लोग हैं वो खाते हैं मक्के की रोटी, है ना, विथ ग्रेट relish. relish मीन्स ग्रेट enjoyment. बहुत ही मज़े लेकर खाते हैं. How does wheat grow? How does wheat grow? Wheat कैसे उगता है? Wheat is planted in big fields. Farmers in India depend on rains to water their wheat crop. When there are no rains, they have to irrigate their fields with water from wells and canals. Wells, canals, wells को हिंदी में कहेंगे कुआं, canals नहरें, है ना. तो जो गेहूं की जो खेती होती है वो बहुत बड़े बड़े खेतों में होती है. Farmers in India depends on rain to water their wheat crops. इंडिया में अधिकतर जो खेती होती है गेहूं की, तो उसके लिए बारिश पर निर्भर होना पड़ता है. बारिश जब होती है तो फसल अच्छी होती है, लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो कुएं या नहरों की मदद से सिंचाई की जाती है. इरिगेट मीन्स सप्लाई वाटर फॉर क्रॉप्स टू ग्रो. सिंचाई करना, फसलों तक पानी पहुंचाना, फसलों को पानी देना. ठीक है. तो जब बारिश कम होती है तो कुओं की मदद से और नहरों की मदद से फसलों को पानी दिया जाता है ताकि फसलें अच्छी हो सकें, उसमें गेहूं अच्छे से हो सके. The wheat plant has a thin stalk. थीन पतली सी उसका जो तना होता है वो बहुत ही पतला होता है. Grains of wheat grow in a head at the end of the stalk. जो गेहूं की फसल है वो at the end of the stalk लगती है, मतलब प्लांट्स के सबसे लास्ट में, सबसे एंड में. We call it the ear also. उसको ईयर भी कहते हैं. When the plants are young, they are green in color. जब वो यंग होते हैं तो वो ग्रीन होते हैं. They look very lovely when they sway in the breeze. Sway means to move slowly from side to side. Breeze means a light wind. जब हल्की हल्की हवा चलती है तो जो गेहूं की फसल है वो इधर से उधर धीरे धीरे जब मूव करती है तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है. When the plants are ripe, they turn golden brown. जब फसलें पक जाती है तो वो गोल्डन ब्राउन में चेंज हो जाती है. ओके. We can make many things from wheat.
हम व्हीट से, गेहूं से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। Families in north of India eat wheat for almost all their meals. जो नॉर्थ ऑफ इंडिया मतलब जो इंडिया के उत्तरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो गेहूं से बनी चीज़ें ज़्यादा अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे चपाती, पराठा। ओके स्टूडेंट्स, रीड द लेसन वेरी केयरफुली। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे इस लेसन को, और अपने भोजन में इन सब चीज़ों का समावेश हम करते ही है। खासकर बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने भोजन में सभी प्रकार के रोटी, चावल, दाल, सब्जियाँ सभी चीज़ों को सम्मिलित करें ताकि आप हेल्दी रह सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।